Hello students. In the last video we have discussed about mode, and before that we have seen about the mean. How to find out mean, how to find out mode, those 2 points we have discussed in the last videos. Okay. Today onwards we are going to start the next point from this lesson, that is the median of group data. Title, maybe you are looking this properly. Median of group data. How to find out median? Those are the measures of central tendencies. In those, first one is the mean, second one is the mode, and third one now we are going to discuss about median. Okay, but before discussing this median, we must know about some important things. Which one those important things? That I am going to tell you. Listen here. Okay, here first important thing is that less than type cumulative frequency. How to prepare a table of less than type cumulative frequency, and second one is known as how to prepare a table of more than type cumulative frequency. Okay, means whenever we are going to face the example of median, that time those two concepts are very much important. And we can say when we are going to solve example of median, that time it is must we have to also prepare, or we have to also find out cumulative frequency. It may be less than type, it may be more than type. Do you understand what I said? Okay, for that purpose those two tables are very important. Okay, now then how to find out this cumulative frequency less than type, how to find out cumulative frequency more than type, that we will discuss now. And these tables, as you know that very well, I have drawn here two tables. As you know that very well, means what I was telling you about this point. This is the class mark and this is the frequency. Class mark and frequency means whenever we are observing one or the other example of frequency, or we can say group data, that time we must means we well known about it. Okay, and it is must in the example, and we also must know about it. In those examples, classes and frequencies are already given. Okay, and by using those classes and frequencies we have to find out the remaining terms. In case of mean, we have seen, we have prepared there in the direct method we have prepared four columns. In those already two were given, two we have prepared. In assume mean method we have prepared 5 columns. In those two were given. Okay, among those 5 2 were given and 3 we have prepared. In case of mode we have not prepared any table, but in case of median we are going to prepare one table. In that 2 columns will be there, third column will be we have to prepare. Okay, do you understand what I said? यानी कि 2 कॉलम तुम्हें दिए होंगे, तीसरा कॉलम जो है वो हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो ये जो तीसरा कॉलम है कैसे प्रिपेयर करना है, और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, ऑन दिस थर्ड कॉलम दिस टोटल मीडियन एग्जाम्पल इज डिपेंड. ओके, ये जो मीडियन का एग्जाम्पल है, ये एक इधर हम एक फार्मूला भी स्टडी करने वाले हैं. वो फार्मूला यूज़ करके हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. लेकिन जिसको ये टेबल अच्छी तरह से प्रिपेयर करना आया, ओके, वही स्टूडेंट ईजीली वो एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला. बहुत बार ऐसा होता है, फार्मूला मालूम होता है लेकिन ये टेबल अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं होता तो आंसर रॉन्ग आ जाता है. ओके, तो ये आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए, इसलिए टेबल बहुत ही सिंपल टेबल है. अगर तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें ईजिली समझ में आएगा और तुम ईजिली वो एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकोगे. ओके, और एक बात मैं एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ इधर, दिस लेस दैन टाइप एंड मोर दैन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, दिस हेल्प्स अस फॉर ड्राइंग अ ग्राफ ऑफ दैट गिवन डेटा. वो जो डेटा दिया होता है उसका ग्राफ निकालने के लिए भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन इस साल इन दिस 30% डिडक्शन सिलेबस दैट ग्राफ पॉइंट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर syllabus. Okay, that's why we will see examples related to formula only. Do you understand? Now look here. First of all, I am going to continue less than type cumulative frequency. Cumulative frequency. Okay, what is meant by cumulative frequency? Cumulative means here we are trying to add next frequency into the previous frequency. That's why it is known as the cumulative one. I am going to show you. अभी एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे मन में, इधर मैंने लिखा देखो, लेस दैन 10, लेस दैन 20, लेस दैन 30. ऐसे ही क्लासेस दिए जाते हैं क्या? इधर मैंने लिखा है देखो, मोर देन में मोर देन और इक्वल टू 0 पहला है क्लास. ओके, मोर देन और इक्वल टू 0 पहला क्लास. दूसरा क्लास इधर भी यही इंस्ट्रक्शन है, मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 20, मोर देन और इक्वल टू 30, मोर देन और इक्वल टू 40. ऐसे ये सारे हैं, लेकिन इधर कंजक्ट होगा इसलिए मैंने एक बार लिखा है और ये बाकी तुम्हें बताने का सोचा मैंने. अभी तुम्हें समझ में आएगा ये कैसे क्लासेस है.
मोर देन और इक्वल टू 0, ये पहला क्लास है, ओके, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी। ये दूसरा क्लास कैसा है, मोर देन और इक्वल टू 10, ये दूसरा क्लास और ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ऐसा है ये। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे ही क्लासेस दिए जाते हैं क्या? नहीं, क्लासेस चेंज करके भी दिए जा सकते हैं। मीन्स बिफोर दैट वी हैव सीन सम क्लासेस लाइक दैट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे क्लासेस हमने देखे हैं। ऐसे भी क्लासेस इधर दिए जाते हैं, ओके। तो हमें कैसे पता चलेगा ये मोर देन है या लेस देन है? ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो एग्जाम्पल में ही दिया जाता है, फाइंड लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फाइंड मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? ओके, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड आउट लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लिसन हियर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। क्या करना है देखो, बहुत सिंपल है। दिस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज वी हैव टू कॉपी ओवर हियर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? दिस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज वी हैव टू कॉपी हियर, okay. After copying, what we have to do, we have to, after copying what we have to do, we have to add this 5 into this. अभी मैं समझने के लिए इधर लिख के दिखा देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखोगे तो चलता है। देखो 5 + 3 आंसर क्या आता है 8। इधर अगर तुमने डायरेक्ट लिखा तो भी चलता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ में आने के लिए मैं लिखता हूँ 5 + this 3, 5 + 3 इज इक्वल टू व्हाट? 8, 8 + this 4, 8 + 4 is equal to what? 12, 12 + 3, 15, 15 + 3, 18, 18 + 4, 22। समझ रहा है? ओके, सिंपली एडिशन करते आना है। देन 22 + 7, 29, 29 + 9, 38। Got it up to this step? 38, 38 + 7, ये 38 प्लस ये 7 कितना होता है? 45, 48, 45 + 8, आंसर क्या आएगा? 53। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली वी हैव टू ऐड इनटू द नेक्स्ट नंबर विच इज द नेक्स्ट। ये देखो 5 + 3, ये मैंने जो एडिशन लिख करके दिखाई है, करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, करना जरूरी है लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है। 5 + 3 डायरेक्ट आंसर लिखो ऐसे, दिस इज नोन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, ओके। अभी मोर देन टाइप में क्या है देखो, मोर देन टाइप में 2 मेथड से वो निकाला जाता है, लेकिन मैं एक शॉर्टकट मेथड तुम्हें बताने जा रहा हूँ इधर। समझ में आ रहा है? क्योंकि इधर भी हम क्या करते हैं, C.F यानी क्या? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये था लेस देन टाइप, ये था मोर देन टाइप, अभी देखेंगे हम, ओके। मैंने तुमको बताया, हमने ये फ्रीक्वेंसी जो निकाली है, ये जो 5, 8, इधर देखो 5, 8, 12, 15, 18, 22, ये जो नंबर्स है इनको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ हाउ टू फाइंड आउट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप। गॉट आइडिया? ओके, तो मोर देन टाइप निकालते वक्त भी एडिशन और अदरवाइज सब्ट्रैक्शन करके वो निकाला जाता है, लेकिन वो दिखाने की जरूरत नहीं है। एडिशन करके भी निकाला जाता है, वो भी दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलता है, ओके। समझ में आ रहा है? तो कैसे लिखना है देखो, ये जो लास्ट नंबर है ना, वो लास्ट नंबर एज इट इज कॉपी करना है इधर, ओके, और इसमें ऐड करना है 8 + 7, नीचे से ऊपर तक जाना है अभी, 8 + 7। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? 8 + 7। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखो, इसको ऐड करना है, 8 एज इट इज, ए एज इट इज कॉपी किया, जैसे हमने इधर 5 एज इट इज कॉपी किया था वैसे ही 8 + 7, आंसर क्या आएगा? 15। अभी 15 + 9, 24, 24 + 7, 31, 31 + 4, 35, 35 + 3, 38, 38 + 3, 41, 41 + 4, 45, 45 + 3, 48, ओके। समझ में दिख रहा है इधर? ओके, 48 + 5,
53। आंसर कितना आया? 53। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज नोन एज मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप सो यू आर गेटिंग आइडिया अबाउट इट। ओके, दिस इज नोन एज व्हाट? मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये है लेस देन टाइप, ये है मोर देन टाइप। ये टेबल आई थिंक यू गॉट आइडिया हाउ टू प्रिपेयर दिस टेबल। ओके, अब ये टेबल जिसको प्रिपेयर करना आता है उसको इस फॉर्मूले से एग्जाम्पल सॉल्व करना है। फॉर्मूला कौन सा है? देखो, मैंने इधर पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के रखा है, क्योंकि जो सारी बातें हैं, क्योंकि अभी मैं बताने जा रहा हूँ ओरली ओनली, ये तुम्हें समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इधर क्या होता है व्हाट इज मीन बाय दिस, क्योंकि लास्ट जो हमने फार्मूला देखा उसमें और इसमें बहुत सारे टर्म्स तुम्हें सेम दिखाई देंगे। ओके, लेकिन उसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब अलग है। क्या है देखो इधर, कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला तुम्हें बाहर करना पड़ेगा। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट एन बाय टू माइनस सी डॉट एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। अभी इधर देखो, ध्यान से देखो, एल मीन्स व्हाट? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसे हमने पिछले टाइप में मॉडल क्लास फाइंड आउट किया था, इधर हमें कौन सा क्लास फाइंड आउट करना है? मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ओके, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि इसका मतलब क्या है? हमें ये टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं तुमको बताऊंगा। ये देखो, ये जो लास्ट नंबर हमें आया है 53, इधर भी लास्ट नंबर कौन सा आया? 53, क्योंकि हमने सेम ही एग्जाम्पल लिया था, ओनली ये क्लासेस चेंज किए थे। ओके, इधर कौन सा नंबर आया? देखो 53, इधर कौन सा नंबर आया है? 53 ही नंबर आया है। ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा लास्ट नंबर कौन सा है? 53। ये जो 53 नंबर है इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अदरवाइज वी कैन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि ये अगर करेक्ट है तो इधर वैल्यू करेक्ट आएगी। समझ में आ रहा है? और ये अगर करेक्ट आ गया तभी हम मीडियन क्लास अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। मीडियन क्लास में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, कैसे प्ले करता है? एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए मैं तुम्हें बता दूंगा। सी डॉट एफ यानी क्या है? देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल हमने बनाया, जो अभी हमने अभी ये जो कॉलम लिखा है इसको बोलते हैं कम्युलेटिव। ये दोनों एट ए टाइम नहीं सॉल्व करने होते। एक तो तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा लेस देन, नहीं तो तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा मोर देन। तो दोनों में से एक हमें प्रिपेयर करना होता है। मैक्सिमम लेस देन ही पूछा जाता है, वेरी रेयर क्वांटिटी में मोर देन टाइप होता है। ओके, दोनों तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अभी मैं सी डॉट एफ की बात कर रहा था। सी डॉट एफ मीन्स व्हाट? दैट इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। जो हम मीडियन क्लास सिलेक्ट करेंगे उसके पीछे की जो क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एफ मीन्स व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ओके, अभी एल की बात हुई, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन बाई टू, एन यानी कि ये टोटल नंबर जो आता है वो, उसको 2 से डिवाइड करके इधर लिखना है। माइनस सी डॉट एफ यानी कि क्या? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, इधर लिखा है देखो। देन नेक्स्ट वन, एफ मीन्स व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होता है जो हम सिलेक्ट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। और एच, ये तुम्हें मालूम है क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकाली जाती है? डिफरेंस इन बिटवीन द टू लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स, वी आर गेटिंग द क्लास साइज। ये है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम बाहर करो और ये दोनों टेबल अच्छी तरह से ध्यान से स्टडी करो। अगर ये तुम्हें परफेक्ट हो गया तो ईजिली तुम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सो you got idea about this table and this formula. Remaining points or remaining examples will continue in the next video. Thank you.